सतनाम श्री वाहेगुरु जी।
धर के पंथ खालसा सजा के बाणा शेरा वाला पाया। तेरे मदाने तली शीस धर के पंथ खालसा सजा के बाणा शेरा वाला पाया। तेरे मदाने तली शीस धर के पंथ खालसा सजा के बाणा शेरा वाला पाया। तारी मौत दा भला के कल्ला लखा ना लड़ाया, ना कदे घबराया मौत सामने खड़ के। तेरे मदाने तली शीस धर के तेरे मदाने तली शीस धर के तेरे मदाने तली शीस धर के। चवर छत्र तख्त दे मालिक सतगुरु धन गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी साहिबां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर खालसा पंथ दे सिरजना दिवस वैसाखी दे अज वैसाख दी संगरांद ते गुरु गोद विच आप सरबत माई पाई जुड़ बैठे हो। सतगुरु पातशाह महाराज जी की महान महान बख्शिश हुई है।
ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਪਾਈ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਇਹਦੇ ਅਸੂਲ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਇਹਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਏ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੀਆਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਸੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਤਸੀਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਉਸ ਉੱਚੀ ਠੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸਿਲ ਵੀ ਘਸ ਗਈ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਏਡੀ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਇਸ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਪਾਹਲ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ
उस वड्डे इकट्ठ नूं संबोधन करके कहा सी कि वेखा तां सही जिहड़ी गल बाबे नानक ने शुरू की है पूरी कित्थों तक हुई है। क्यों? क्योंकि साडे बच्चे स्कूल दे विच पढ़दे ने, सारा साल क्लासां लैण तो बाद वखरा ट्यूशन भी रखाया जाता है, बच्चे घर दे विच भी मेहनत करते ने, उस तो बाद कदे भी दावे दे नाल गल नहीं कही जा सकती कि मेरे पुत्र ने बड़ी मेहनत की है ते बिना इम्तिहान लैण तो अगली क्लास दे विच कर दिता जाए। मास्टर कहता नहीं, स्कूल दा प्रबंधक ढांचा यह गल कहता भी नहीं, असीं पहला पेपर लवांगे, इन्हें मेहनत की है बिल्कुल ठीक है, पर पेपर लैके पता लगेगा, इम्तिहान होणगे, एग्जाम होएगा, फिर पता लगेगा भी इन्हें मेहनत की है कि नहीं की। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 1469 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਅਗਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, जीवन की छड़ आस हो सबन की रेणुका, तो आओ हमारे पास। यह गल साहिब सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी कहते हैं ते इस गल नूं सिखाउण वास्ते, अमली जामा पहनाउण वास्ते, प्रैक्टिकल करने वास्ते गुरु नानक पातशाह महाराज जी नूं अज 9 जामे लग गए ने। एक लंबा पैड़ा तय करना पिया ते कलगियां वाले सतगुरु पातशाह महाराज जी कहण लगे, वेखिए तो सही बाबे नानक ने एक सबक दिता सी, एक लैसन दिता सी, जिवें बच्चे नूं एक लैसन दिता जांदा भी घर दे विच जाके पढ़ी ते फिर तेरा इम्तिहान होवेगा। जिहड़ा लैसन गुरु नानक साहब जी ने दिता सी कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, पता तो करिए भी मरण कबूल किन्नियां कुने कीता है। ये मरण नूं प्रवान करते भी नहीं कि नहीं करते, कि जां एक नलायक बच्चे वांग वो अपनियां किताबां, वो अपना बैग जिहड़ा है पढ़ाई वाला वो लिया के खूंजे सुट दिता ते अगले दिन फिर उठ के तुर पे ते पेपरां दे विच जीरो। पता तां कीता जाए भी उहनूं किन्ना कु पढ़िया, इन्हां ने किन्ना कु कमाया है। ते सत्कारयोग साध संगत जी, फिर आवाज पई ते साहिब सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे सिखां ने इस सिੱਖੀ नूं कमाया सी। उस बाणी नूं केवल पढ़िया नहीं, उस बाणी नूं विचारिया ते माणिया। आवाज मारी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने ते सत्कारयोग साध संगत जी, भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहब सिंह जी, जिन्नी वारी दातार सतगुरु आवाज मारते हैं उन्नी वारी गुरु के सिख छाल मार के उठते हैं, दाता सिर ते है ही तेरा। मेरे गुरदेव पातशाह महाराज जी ने मंग की ते सिख ने सिर भेंट कर दिता। सत्कारयोग साध संगत जी, फिर गुरु दी वेखो वडियाई। गुरदेव पातशाह महाराज जी ने कहा, सिखा जे तू मैनू सिर भेटा करदा है, जे तेरे अंदर एक गल आ गई है कि हो सबन की रेणुका, तो आओ हमारे पास ते आ फिर एक तिल नहीं भन्ने कल है, तेरा भी मैं लिहाज नहीं लैंदा। गुरदेव पातशाह महाराज जी ने फिर उन्हां पंजां नूं जिन्हां ने आवाज मारन ते छाल मार के उठे सन, सिर भेंट कीते सन। गुरु कलगियां वाले पातशाह महाराज जी ने यह गल कही कि ये मेरे प्यारे ने, मैनूं दुनिया तो सब तो ज्यादा प्यारे ये लगते हैं, ये मेरे प्यारे ने। सत्कारयोग साध संगत जी, फिर उन्हां दा रुतबा वेखो। दुनिया का कोई पैगंबर ऐसा नहीं होया जिन्हें अपने चेलियां नूं अपना साहिब बनाया होवे। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी फिर इन्ने खुश होए, दातार सतगुरु पातशाह महाराज जी कहने लगे, ओ साहिब मैं उसका चेला, ये मेरा खालसा पंथ है, ये मेरा साहिब है ते मैं इहदा चेला हां। केवल ते केवल इकलौता पैगंबर साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी है, जिन्हां ने अपनी पवित्र रचना दे विचों खालसे पंथ नूं एडा वड्डा मान दिता। जिथे खालसा साजिया, साजण तो बाद नवाजिया भी। पर सत्कारयोग साध संगत जी, खालसे पंथ दा किरदार, खालसे पंथ दा इखलाक, खालसे पंथ दी खुराक, एदी पोशाक, एदी रहनी, एदी बहनी, एदी कहनी, एदी सहनी, ये सारा कुछ तब्दील कर दिता बाजा वाले गुरदेव पातशाह महाराज जी ने। तां दुनिया में ऊपर जानिया गया कि खालसा पंथ एक ऐसा पंथ है जिहदे वर्गा संसार ते होर कोई नहीं। आप जी सुन रहे सी, बाबा जी कह रहे सन खालसे पंथ की सिरजना हुई है क्योंकि जन्म दे नाल मौत जुड़ी हुई है। जे जन्म हुंदा ते मौत अवश्य सी, ये अमर खालसा है। और सत्कारयोग साध संगत, फिर इस खालसे पंथ के उपर जेडे चक्कर आए 18वीं सदी सारी दी सारी 1708 ईस्वी नूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी सचखंड गमन कर जाते हैं।
और 1708 तो बाद इस खालसे पंथ ने एक वड्डा घोल घुलिया है जो बाजां वाले सतगुरु पातशाह महाराज जी ने दसिया सी, जेड़ा जीवन जीउण दी जाच सिखाई सी। सत्कारयोग साध संगत जी, फिर कुदरत राणी ने इहनूं कसवट्टी ते लाया ते बाजां वाले दा खालसा पंथ कदे जंगलां दे विच, कदे बियाबान दे विच, कदे भुखा, कदे ध्याया, कदे धुप्पे, कदे ठंड दे विच, और इथों तक कि मुट्ठी पर छोले और घोड़े दी काठी दे उपर किन्ने दिन बताए जी खालसे पंथ ने। साडे वड वडेरियां ने, साडे बजुर्गां ने, जिन्हां दा ध्यान करके अज हर गुरु नानक नाम लेवा सिख जदों भी अपने इष्ट दे सामने खड़ा हुंदा है ते हाथ जोड़ करके ये गल जरूर कहंदा है कि उन्हां दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू, उन्हां दी करनी कमाई दा ध्यान। तो अज दे दिन वैसाखी दे दिन खालसे पंथ की सिरजना हुई। वैसाखी अगर एदा इतिहास वाचिया जाए तो बहुत लंबेरा इतिहास है। खालसा पंथ जद्दोजहद कर रहा सी। मैं खालसे पंथ की एक चढ़ती कला की वार जिहड़ी वैसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने बहादुर सूरमिया ने लिखी, वो तुहाडे नाल साझी करके खालसे की चढ़त की गल करके खिमा मंग लैनी। अकाल तख्त साहब जी के पावन पवित्र अस्थान ते वैसाखी का दिन है। खालसे पंथ का दीवान लग्या होया। मिसलों के दिन सन। सरदार हरी सिंह भंगी मिसल का जथेदार, परना दल का जथेदार, सत्कारयोग साध संगत जी दीवान सजा करके बैठा है। अकाल तख्त के सामने खालसे पंथ का लगा होया दीवान जिवें तुसीं बैठे हो, इसे तरीके दे नाल वैसाखी वाले दिन वैसाखी का पुरब मनाउण वास्ते खालसा पंथ अमृतसर की पवित्र धरती ते ये वो दिन सन जदों अहमद शाह अब्दाली ने सरोवर पूर दिता सी ते हरिमंदर ढा दिता सी। ये वो दिन सन। अहमद शाह अब्दाली अजे लाहौर दे विच नहीं सी पहुंचिया। खालसियां ने हरिमंदर दे विच आ करके हरिमंदर दे दर्शन दीदार शुरू कर दिते और इत्थे सेवा प्रारंभ कर दी। जेड़ा पूरा होया सरोवर कूड़े करकट दे नाल ओदी सेवा शुरू की। ढाया होया हरिमंदर दोबारा उसारन दीयां विचारां शुरू होण लगियां और अज वैसाखी का पुरब खालसे पंथ ने अमृतसर हरिमंदर साहब दे विखे मनाउणा है। अकाल तख्त दे सामने लगा होया दीवान ते कौम का जथेदार सरदार हरी सिंह भंगी बैठा सी। सत्कारयोग साध संगत जी, सजे हुए दीवान दे विच एक कोई अणपछाती रूह आई है जिहदे सिर दे उपर बोधी है, तेर धोती है और जनेऊ पहने होया है। उन्हें गल दे विच पल्ला पा करके खालसे पंथ के जथेदार सरदार हरी सिंह भंगी के सामने जो कुछ कहना शुरू किया। रोंदे हुए पंडित ने अपनी फरियाद जिन्हां शब्दां राही कही, उन्हां शब्दां नूं टाडी जथा गा के बयान
ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਸ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭੇਟ ਮਾਰਾ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵੈਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक पंडित ने आकर के गल च पल्ला पा करके गल कही, कहने लगा मैं सरदार हरी सिंह भंगी नूं मिलना। सेवादार ले आया, जथेदार दे कोले लिया करके मिलाप करा दिता। जथेदार जी ये पंडित आप जी नूं मिलना चाहुंदा है। जथेदार ने सुख शांत पूछी, पंडित जी कित्थों आए हो? बड़े घबराए हुए लगदे हो, तुहाडे खुच्चां ते घट्टा जम्मिया होया है, की कारण है? पंडित का विचारे दा दिल तरवास नहीं सी धर रहा, कालजा धड़क रहा सी, धड़कन इन्नी वधी हुई है, उहदे कोलों गल नहीं हो रही। जथेदार ने कोल खड़े हुए सेवादार नूं आवाज मारी, कहन लगे पंडित नूं जल छकाओ और इहदी जल पानी दी सेवा करो। इहदे कोलों बाद दे विच पुछदे आ भी कारण की है, किहड़ी गल्लों घबराया होया है। सेवादार ने पंडित नूं नाल लिया और उहदी जल पानी दी सेवा कीती। कित्थे विचारे ने जल पानी छकना सी। आखिर वो पंडित नाल आया, आकर के सरदार हरी सिंह भंगी जथेदार नूं हाथ जोड़ के बेनती करन लगा, कहने लगा मैं कसूर तो आया होया एक दुखियारा पंडित हां। सरदार हरी सिंह भंगी ने कहा, उन्हें आख्या फिर इन्ना घबराया होया क्यों है, गल की है? कहने लगा दरअसल घबराया होया मैं इस करके हां कि साडे पिंड कसूर शहर दा नवाब जिहड़ा उस्मान खान है, उन्हें बहुत पाप सिरे ते कीते हुए ने, अत चुकी हुई है शहर दे विच। उन्हें कहा पंडिता कारण? कहंदा जी वो हाकम इन्ना कट्टड़ है, वो हाकम इन्ना परेशान करता है, वो कहंदा है भी अपने इस कसूर दे अंदर मैं हिंदू बरादरी रहन नहीं देनी, जे रहणगे तां मेरे कहने दे विच मेरे थल्ले लग के रहणगे, जो भी उन्होंने कुछ करना है वो मैनूं पुछ के करनगे। इतों तक कि हिंदुओं के उपर इन्ना तशद्दद किया जाता है। वो कहता है कि जे मोमना ने पान खाधा होवे, पान थुकना होवे, ते जे हिंदू लागे खड़ा है तो उहदे पान थुकण वास्ते उहदा मूँह खुला होना चाहिए, असीं उहदे मूँह च थुकांगे। इन्ना तशद्दद। इतों तक जथेदार जी कि साडे पिंड दे विच किसी भी नौजवान अबला दी इज्जत महफूज नहीं है, किसी दी भी इज्जत महफूज नहीं है। और मैं दुखियारा पंडित इस करके तुहाडे कोल आया हां कि मेरी अपनी पंताणी जिसनूं रब ने सुहप्पण रज के दिता, हुसन दी मलका सी, और वो एक दिन बाजार दे विच तुरी जा रही है तां इस नवाब की नजर पै गई। उस नवाब ने हुक्म कर दिता कि इस पंताणी नूं चुक के मेरे महिला तक पहुंचा दिओ। उन्हें हुक्म किया ते उहदे करिंदे उन्होंने चुक करके उहदे महला तक लै गए। मैं रोंदा पिटदा मगर गया, मैनू धक्के मार करके कर दिता गया। जथेदार ने कहा फिर लाहौर दरबार दे विच, कहन लगा जी लाहौर दरबार दे विच मैं गया, उत्थे मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं एक खूह की फसील दे उत्ते खड़ा खूह दे विच छाल मार के मर चलिया सा। जदों मैं खूह दे विच छाल मारन लगा जथेदार जी, तो मैनू किसी ने आवाज मारी, कहन लगे पंडिता की करन लगा है? कहता जिहदी पत लुटी गई होवे, जिहदी पत नूं हथ पै गया होवे, जिहदी पत हाकमां दे महिलां दे विच रुलदी होवे, ओहदा जीण दा की फायदा? ना सरकारे दरबारे कोई दलील वकील चलदी है, मेरी किसी ने सुनी नहीं है, इस वास्ते इहदे नालों मैं मर जाना बेहतर समझदा हां। उन्हें आख्या गल की है? कहन लगा मेरी पंताणी नूं जबरदस्ती उस्मान खां चुक के लै गए। कहंदा उस राहगीर ने मैनूं ये गल कही, कहन लगा पंडिता रब ने ये मनुखा जन्म दिता, इहनूं अजाई ना गवा, आत्म हत्या ना कर। जिहड़ी तेरी दुख की गल है, दुख की गल है, तेरे दुख का इलाज हो सकता है, तेरे जख्मां ते मलम लग सकती है। इतों थोड़ी दूर जा अकाल तख्त श्री अमृतसर साहिब, उत्थे बैठा होवेगा पंथ खालसा, ते पंथ खालसे दे कोल जा करके फरियादी हो,
जे पंथ खालसे तक तेरी गल चली गई तो गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ सिरजिया ही इसे वास्ते है, दुर्जन के मारबे को असुर संघारबे को खालसा बनायो है। वो परोपकारी खालसा सिरजे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने इस वास्ते है। एक बारी ये अपनी दुखों की कहानी खालसे पंथ तक पहुंचा दे, इस वास्ते जथेदार जी तुहाडे इस पवित्र दरबार दे विच गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह महाराज जी के पवित्र तखत ते खालसे पंथ की शरण पिया हाँ कि कृपा करके मेरी जिहड़ी इज्जत है वो मैनू वापस दवाई जाए। सत्कारयोग साध संगत जी, कौम का जथेदार सरदार हरि सिंह भंगी एक एक गल जदों पंडित दसदा गया ते सरदार उस गल नूं सुनदा गया। जदों पंडित ने गल समाप्त कर गई उस वक्त जथेदार दे अखां दे विच खून उतर आया। उन्हें अपने बहादुरां नूं संबोधन करके सुन के पंडित की दास्तान जिस तरीके दे नाल सरदार हरि सिंह भंगी हरकत दे विच आउंदा है, उन्हें आख्या हरि सिंह भंगी दे जिउंदे हरि सिंह भंगी दे हुंदे खालसे पंथ दे हुंदे अगर अबलावां दे उपर इन्ना तशद्दुद होवेगा ते खालसे पंथ दा होण दा फिर की फायदा होया। गुरु गोबिंद सिंह ने सिरजिया पंथ इसे वास्ते है। सत्कारयोग साध संगत जी, आओ तकीए अकाल तखत भरे दीवान दे विच पंडित ने दास्तान सुनाई है ते सरदार हरि सिंह भंगी उहदे प्रतिकरण दे विच खालसे पंथ दी मान मर्यादा दे अनुसार लो लखा होया पाके मत्थे ते त्योड़ी खालसे पंथ नूं संबोधन होकर एक जोश भरी तकरीर है।
कोलों सुनिया सरदार हरि सिंह भंगी ने उन्हें अपने बहादुरां नूं संबोधन होकर के क्या उन्हें आख्या खालसे पंथ दे हुंदियां होया जे किसी विचारे गरीब दी अबला दी इज्जत महफूज नहीं है फिर साडे होण दा फायदा की है। तैयारी करो, हुणे चल करके इस दी पंताणी रिहा करा के लाउणी है। हुणे इसे वक्त उस्मान खान नूं फतेह करने वास्ते कसूर ते चढ़ाई की जाएगी। सत्कारयोग साध संगत जी, नाल दे सरदारां ने बेनती की, सरदार जी कसूर एक छोटी ताकत नहीं बहुत वड्डी ताकत है। अजे तक किसी ने उहदे ते हमला नहीं किया, किसी ने कसूर नूं लुटिया नहीं, इथों तक कि अब्दाली ने भी हिम्मत नहीं की। कसूर एक वड्डी ताकत है, इस वास्ते जिस शहर नूं लुटण वास्ते अब्दाली की हिम्मत नहीं पई, आपां नूं सोच समझ के उत्थे हमला करना चाहिए, किते नुकसान ना हो जाए। सानू सारा दल पंथ इकट्ठा करना चाहिए। असी इत्थे बैठे हैं, बुढ़ा दल जो कि सतलुज तो पार दुआबे दे विच उस इलाके दे विच विचर रहा है। जथेदारां ने गल कही कि साडी विचार यह है कि जथेदार साहब सारा दल इकट्ठा करके सारियां मिसलां इकट्ठियां करके ते फिर सानू कसूर दे उपर हमलावर होना चाहिए। जे आप जल्दबाजी करांगे तो हो सकता है कि अपना नुकसान होवे, धोखा हो जाएगा। सरदार हरि सिंह भंगी सोचन लग पिया। उन्हें सोच के एक गल कही, उन्हें आख्या जथेदारो आप बैठ करके नाल दे जथेदारां नूं उडीकांगे, नाल दे जथियां नूं उडीकांगे, उन्हां मिसलां नूं उडीकांगे। अपने वास्ते उडीकण वास्ते कोई वड्डी गल नहीं, आप बैठ के इंतजार कर लवांगे, अज नहीं कल नूं हमला हो जाएगा। पर जरा इस पंडित के चेहरे वाले वेखो, ये पंडित विचारा जिसकी अबला वो उस्मान खान अपने महिला दे विच पा लई है, उन्हें ओहदे नाल की कर रहा होवेगा। ते ये पंडित विचारा जिहदे अंदर एक एक घुट तेजाब दा जा रहा है, जे पानी पिलाईदा इहनूं लगदा है तेजाब वांगू वढ़दा है। ये विचारा इन्ने दिन इंतजार करेगा ते इहदी पंताणी जिहड़ी उत्थे महिलां दे विच नरक भोग रही होएगी, विचारी वो साडा इंतजार करेगी। इस वास्ते मेरी बेनती है कि साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी दे खालसे हैं ते अकाल तख्त दे सामने बैठे हैं। साडा फर्ज बनता है कि आपां अरदास करके इथों तुरीए, सानू हमला कर देना चाहिए, सानू इथों कूच कर देना चाहिए। भरावां नूं सुनेहा भेज देवांगे, आपे मगर आ जाणगे। सरदार हरि सिंह भंगी ये फैसला दे रहा सी। सत्कारयोग साध संगत जी, इत्थे दो दल बन गए। एक दल कहे कि हुणे तुरना चाहिए ते दूसरा दल यह गल कहंदा है कि नहीं सानू इंतजार करना चाहिए। सरदार हरि सिंह भंगी ने गल कही कि हरि सिंह भंगी कल्ला जावेगा ते कसूर ते हमलावर होवेगा। जे मैं फतेह ना कर सकिया ते शहीद ते हो ही जावांगा ना, शहादत तो मैनू मिल ही जाएगी। घट्टो घट मेरे अंदर यह तरी बेचैनी बनी रहेगी कि यह पंडित विचारा खालसे दे दरबार दे विच आया सी ते इहदे दुखों का इलाज उस वेले नहीं किया गया। इस वास्ते मेरे गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का पवित्र फरमान है, नह विलंब धर्मं, धर्म करन दे विच एक रता जिन्नी भी देरी नहीं करनी चाहिए। सरदार हरि सिंह भंगी ने कहा कि मैं जावांगा, जिन्हें मेरे नाल तुरना होवे वो आ सकता है, जिन्हें नहीं आना वो आराम करे, बैठ के दूसरे दलों नूं उड़ीके। मैं कला भंगी मिसल दे विच 5000 गुरु के लाडले सत्कारयोग साध संगत जी अकाल तख्त के सामने खड़े होकर के कौम के जथेदार ने गल च पल्ला पा के अरदास की कि हे हरगोबिंद साहब पातशाह महाराज जी कृपा करो, रहमत करो। यह बेचारा गरीब पंडित दुखियारा पंडित आया फरियाद लैकर के तुहाडे पंथ दे कोल ते इहदी मदद की जावे, कृपा करके सहाई होयो। तुसी बख्शिशां कीतियां ने, खालसे पंथ नूं 1.25 लाख दा कल्ला मुकाबला करदा है ते मेरे नाल तां फिर भी मरजीवड़े ने, आप जी रहमत करनी। सत्कारयोग साध संगत अरदासा करके पंथ दा जथेदार घोड़े ते सवार होकर के खड़ा है, कोल खड़ा है पंडित। जथेदार ने यह गल कही और आख्या पंडित जी चलो साडे नाल,
ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੜਤਾਣੀ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਰਨੈਲ। पंडित हाथ जोड़ के कहने लगा जथेदार जी तुसी जाओ और जा करके कसूर नूं फतेह करके उतो पंडतानी मेरी लै आओ, मैं इत्थे बहना। जथेदार ने कहा पंडता असी कसूर फतेह कर लवांगे पर उत्थे तेरी पंडतानी नूं पहचानांगे किदां कि तेरी कौन है, किनू लिया के तेरे सुपुर्द करांगे, पहचान केवल तू कर सकदा है, इस वास्ते तैनूं साडे नाल जाना पवेगा। पंडित कंबण लग पिया। लड़न वास्ते खालसा चले है। मैं बेनती की है खालसा पंथ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने प्रगट किया है और ये सारे धर्मां दा निचोड़ है। बड़ी बहादुरी है, बड़ी निगर दलेरी है, इखलाक ते किरदार इहदा उच्चा है। अज जेड़े छाती ते हाथ मार के कहंदे ने भी साडा 56 इंच दा सीना है ते सारा असीं अपना ही बना लेना है। सत्कारयोग साध संगत जी उन्हां विचारियां ने कदे स्कूले जाके 4 दिन इतिहास नहीं पढ़िया कि साडा पिछोकड़ की है, असीं काहदे सिर ते तुरे फिरदे हां। ये धोतियां ते बोदियां काहदे सिर ते बच्चियां होईयां ने, उन्होंने कदे इतिहास नहीं वाचिया ते उन्होंने की वाचिया असीं भी नहीं। पंडित की इन्नी हिम्मत नहीं है भी खालसे लड़न वास्ते चले ने, मैं केवल राह दस्सण वास्ते नाल तुर पवां। सरदार हरि सिंह भंगी ने इशारा किया एक सिंह नूं, उन्हें पंडित खड़ा सी, पंडित दीयां बगलां च पाया हाथ ते भुआ के घोड़े ते सरदार हरि सिंह भंगी दे घोड़े दे उत्ते बिठा दिता और जथेदार ने कमर कस्से दे नाल पंडित नूं घुट के अपने लक दे नाल बन लिया, पिछाड़ ना मार जाए। लगी अकारे ते चोट। सत श्री अकाल दे जयकारियां दे नाल खालसे अकाल तख्त श्री अमृतसर साहिब तो कसूर वल नूं रवाना होए। सत्कारयोग साध संगत जी सरदार हरि सिंह भंगी अपना दल लैकर के तुर पिया। जदों ये तुर गया ते मगर बचिया शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा दादा सरदार चरत सिंह शुक्र चकीया। उन्हें जेड़े बचे हुए सरदार सन उन्होंने इकट्ठा किया। उन्हें आख्या भराओ सरदार हरि सिंह भंगी चलिया गया, रब ना करे उस मैदाने जंग दे विच सरदार हरि सिंह भंगी शहीद हो जावे, लोग सानू जीउण नहीं देणगे भी जे वो कल्ला चलिया गया सी तुसीं इत्थे काहदे वास्ते बैठे सी, उहदी मदद वास्ते क्यों नहीं गए। सानू लोग ताने मारनगे, लोग गल्लां करनगे, सानू जीउण नहीं देणगे। इस वास्ते सरदार हरि सिंह भंगी गया है, साडा फर्ज बनदा है नाल जाना। जे सरदार हरि सिंह भंगी कसूर नूं जित के आ गया तां भी लोग जीण नहीं देणगे भी अपने आप नूं बहादुर कहाउंदे हो, डर के बैठ गए सी, कल्ला हरि सिंह गया ते जाके जित आया। दोवें पासे तो आपां मरदे हां। इस वास्ते साहब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी का सिंह है सरदार हरि सिंह भंगी, जेड़े खंडे बाटे चो अमृत उन्हें छकिया सिंघो, उसे खंडे बाटे चो अमृत असी छकिया। सानू इतना बैठना नहीं चाहिए, भरा दे मगर जाना चाहिए। सत्कारयोग साध संगत जी सरदार चरत सिंह शुक्र चकीया इन्हें भी गल पाया पल्ला कीती। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह महाराज जी ने मुबारक चरणों च अरदास मार के नगारे ते चोटां रहिंदे होए दलां नूं नाल लै करके सरदार चरत सिंह शुक्र चकीया जिस कदर अमृतसर तो रवाना होंदा है ओहदी चढ़त दा जिक्र इन्हां शब्दां दे विच इउं बयान कीता।
सरदार चरत सिंह नगारे ते चोटा मार करके अकाल तख्त साहब तो रवाना होया। अजे सरदार हरी सिंह भंगी एक पड़ाव पहुंचया सी, मगरे सरदार चरत सिंह होनी जा रहे जदों भरा दे नाल बराबर भरा करके खड़ा हो जाता ना मोढा जोड़ करके, तां गुरमुखो ताकतां वध जांदियां ने, बाहूबल वध जाया करदा है। जदों भरावां नूं मगर आया वेखिया सरदार हरी सिंह भंगी ते सारे बहादुर जरनैलां दे चा चढ़ गए, कहण लगे हुण तां कसूर बस मसलिया लो। अकाल दे जयकारिਆਂ दे नाल खालसा पंथ कसूर वल नूं वधदा जा रिहा सी। रस्ते दे विच जिहड़े पिंडां थाणी निकलदा है उन्हां पिंडां दे विच नौजवानां नूं पता लगदा है। वेखो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी दे सिंघां दी कहानी, जिस पिंड दे विचों दी दल निकलदा है ना, उथों दे नौजवान तलवारां धू करके ते आप नाल रल जांदे ने भी चलो चलिए मरन वास्ते। ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी का खालसा पंथ है। अकाल दे जयकारियां दे नाल और आ वैसाख दा महीना ऐ गर्मी शिखर ते रमजान दे दिन चल रहे सन। सत्कारयोग साध संगत जी, खालसा पंथ कसूर नूं चार चफेरियों घेर करके घेरा पा के बैठ गया। एक एक दरवाजा मल लिया गया और एक एक दरवाजे नूं सर करके अगे वधे। पंडित नाल है, पंडित नूं नाल जा लै करके पुछया सरदार हरी सिंह भंगी ने कि केड़ा महल है उस्मान खान दा, जिस महल दे विच तेरी पंताणी है। मरदे दे जी दे नाल पिछे घोड़े ते बैठे हुए ने सरदार हरी सिंह भंगी दे वखी दे लागों दी हाथ कढ़ के उंगल कंबदी होई दे नाल इशारा कीता भी ओ सामने जिहड़ा महल है वो उस्मान खान दा है। सत्कारयोग साध संगत रमजान दे दिनां दे विच शरद भोरियां दे विच बैठ करके मोमन लोग उस खुदा दा उलामा ला रहे सन। एक पासे इना पाप ते तशद्दुद ते दूसरे पासे रोजे रख करके रब दा उलामा ला रहे ने। सत्कारयोग साध संगत जी, जिस वक्त खालसे पंथ ने उस्मान खान नूं घेरा पा लिया, कसूर शहर नूं घेरा पा लिया, बाजारां ते कब्जा कर लिया, उदों पता लगा उस्मान खान नूं मरदे जे जी दे नाल निकलिया और किले दी फसील ते चढ़ के कहण लगा सिंघो वापस मुड़ जाओ, ये कसूर है। इस नूं जितण दी, इस ते हमलावर होण दी अब्दाली वर्गियां ने हिम्मत नहीं कीती। सरदार हरी सिंह भंगी ने कहा उस्मान खान, अब्दाली दे विच ते खालसे पंथ दे विच बड़ा फर्क है। असीं मुड़न वास्ते नहीं, गुरु हरगोबिंद साहब जी दे मुबारक चरनां च अरदास करके जां मरन वास्ते जां जितण वास्ते आए हैं। तो सीधा हो, जेड़े पाप तू कीते ने वो पापां दा घड़ा भर चुका है और हुण तैनूं इन्हां कीतियां दा फल भुगताउण वास्ते खालसा पंथ आ गया है। करके तैयारी, आखिरी हल्ला सरदार हरी सिंह भंगी कराउण लगा है। उस्मान खान दे किले दे उपर हल्ला करन लगा है खालसा पंथ। गुरु के खालसे तैयार बर तैयार होकर के सूत के परचाइयां हुई सिरी साबां और पाके मत्थे ते त्यूड़ियां करके अखां लाल छड्ड के सत श्री अकाल दे जयकारे ते आखिरी हल्ला है।
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮਰਦੇ ਜੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਧਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਸਨ ਤੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਖਜੂਰੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਆ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਅੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਭੇਟ ਮਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।